Assalamualaikum 9th General Science students. Chapter number 3 of your book has been completed. So today we are going to do the exercise of the chapter, जिसमें सबसे पहले हमने करनी है fill in the blanks. So first blank is penicillins are made by a fungus called, it's an antibiotic और ये किस फंगस से बनी होती है? पेनिसिलियम से. Next is human blood can be classified into A, B, AB and O groups on the basis of antigens, and the second is antibodies. Third one is diabetes and hemophilia are due to change in what molecule? DNA molecule, because DNA carries their information. The products or fat digestion are called, two products are there, they are called glycerol and fatty acids, क्योंकि फैट्स इन दोनों से मिलकर बनती हैं. सेफ्लोस्पोरिन जो कि वंस अगेन एंटीबायोटिक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस जिसका नाम है मैनलोस्पोरियम. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज है. फर्स्ट राइट और रॉन्ग इज metabolism is a combination of anabolic and catabolic reaction, which is true, और it's the right statement क्योंकि इसकी definition में हम ऐसा ही पढ़ते हैं. Second statement is fats are stored in the epithelial cells of human body. This statement is wrong because हम लोगों ने पढ़ा है fats जो है वो adipose tissue में save होती हैं. Next is penicillin is a broad spectrum antibiotic. This statement once again is wrong because we learned that penicillin is a narrow spectrum antibiotic. Next question is MCQs or encircling the right answer from a multiple choice question. First is the function of platelets is, the answer is option A, which is blood clotting. Second statement is genetic information is transferred by nucleus, chromosomes, genes या फिर gametes. इसका आंसर है genes क्योंकि हमें पता है genes के पास सारी की सारी information होती है. Third statement is fats are stored or formed by the combination of, अभी हमने ऊपर ब्लैंक में भी देख लिया, इसका आंसर है सी. फैट्स जो हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनती हैं. नेक्स्ट इज पेनिसिलिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, द ऑप्शन इज बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हार्वर्ड फ्लोरी. हमने इसको एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था. Next is the antibiotic cephalosporin was discovered in year 1948. Next question number 4 of your exercise is short answers. उसमें पहला question है write the names of 3 main types of cells in blood. इसका आंसर आपको मिलेगा blood के टॉपिक से, which is on page number 31. Right here you can see the answer. The components of or the types of cells in blood are number 1 red blood cells या erythrocytes, number 2 white blood cells या leukocytes and number 3 platelets. ये होगा आपका आंसर और इसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टिश्यू स्टोर फैट्स इन ह्यूमन बॉडी. इसको भी हमने ऊपर राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स में भी देख लिया. इट इज़ स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू और ये आपको मिल जाएगा फैट मेटाबॉलिज्म के टॉपिक पर, विच इज़ ऑन पेज नंबर 30. राइट हियर इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन. एक्सेस फैट्स मे बी स्टोर्ड इन द एडिपोज या फैट स्टोरिंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी. This is going to be the answer. Third short question is what is transgenic organism.
इसका आंसर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इट्स ऑन पेज नंबर 33। ये है आपका आंसर। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव अ फॉरेन जीन इज़ कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और इसके सेकंड पॉइंट के तौर पे आप लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय genetic engineering. This can be the second point of this answer. And finally the fourth short question is what is a catalyst? इसका आंसर है आपके एंजाइम्स वाले टॉपिक में। जब आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी देखी थी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट्स डेफिनेशन इन द ग्लॉसरी ऑफ योर चैप्टर। पेज नंबर 30 पर आपके एंजाइम्स के टॉपिक में सेकेंड लाइन में आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन दी है। अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन चेंज और स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। और इसके सेकेंड पॉइंट के तौर पे आप ये लाइन लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंड राइट हियर इन द ग्लॉसरी एज वेल आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। Catalysts are the substances that change the speed of chemical reaction without undergoing any chemical change in structure. आप ये definition भी लिख सकते हैं इसकी आंसर में। नेक्स्ट आप आ गए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें पहला है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसके आंसर में आपका मेटाबॉलिज्म का पूरा टॉपिक अलॉन्ग विद इट्स टाइप्स आएगा, जो कि आपका टॉपिक नंबर बनता है 3.1। इसमें आप मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन भी करेंगे और सारी की सारी टाइप्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। ये वाला क्वेश्चन जो है मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के अंदर से निकाला गया है। इसमें आपने जस्ट डाइजेशन एंड एसिमिलेशन वाली हेडिंग को लिखना है 3.1 वाले टॉपिक के अंदर से। सो पूरा टॉपिक नहीं आएगा, जस्ट डाइजेशन और एसिमिलेशन वाला पैराग्राफ आ जाएगा। Next up is what is an enzyme and what role is played by enzymes in our daily life। इसमें भी enzymes का पूरा टॉपिक आएगा आपका, जो कि आपका पेज नंबर 30 पर है, and it is the topic number 3.2। This entire part will be the answer of your question. Next up is what are the components of blood। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 31 पर, और ये टॉपिक नंबर है 3.3। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कितना करना है। सो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के आंसर में आपने इस टॉपिक को बिगिनिंग से लेकर, स्टार्ट से लेकर, ब्लड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी से लेकर ब्लड प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग तक आंसर करना है, बिकॉज इसमें ब्लड के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है और उसके पार्ट्स और या कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया गया है। दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ डीएनए द हेरिडिटरी मटेरियल, एक्सप्लेन इन डिटेल। इसमें डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल का पूरा टॉपिक आ जाएगा, विच इज़ ऑन पेज नंबर 32 एंड इट इज़ द टॉपिक नंबर 3.4। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका इसके आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हाउ कैन इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। इसके आंसर पे आपने टॉपिक नंबर 3.5 में से अटैम्प्ट करना है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 33, और मैं आपको मार्क भी करवा देती हूँ आपने कितना आंसर इसका करना है। सो क्वेश्चन में आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया है और लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स के बारे में कहा गया है, पूछा गया है। सो इसका आंसर आप लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेकर यहाँ तक जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी डेफिनेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और इसके बाद रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पार्ट आपने नहीं ऐड करना, इंस्टेड आगे चल के आप सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इसमें यहाँ से लेकर ये पूरा
एंड तक आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल्स तक, यहाँ तक, ये होगा आपका आंसर. Moving on, you have what is an antibiotic and write down its types. ये आपने टॉपिक नंबर 3.7 में पढ़ा है पूरा, जिसमें कि आपने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन भी देखी थी और उसकी 4 डिफरेंट टाइप्स भी देखी थी. तो इसमें आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन प्लस वो 4 टाइप्स का पार्ट इंक्लूड हो जाएगा. एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ what is recycling? Give a detailed account how the waste and scarce materials can be made usable. और इसमें आपने पहले रिसाइकलिंग की डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आगे का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा पार्ट उसमें आएगा. दैट इज़ पेज नंबर 36 एंड टॉपिक नंबर 3.8. मैं आपको मार्क करवा देती हूँ आपने कितना आंसर लिखना है इसका. इसके आंसर में बिगिनिंग में सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आएगी एंड देन आपने इम्पोर्टेंस भी लिखनी है एंड फर्दर आगे वाला सारा पार्ट आपका इंक्लूडेड होगा अंटिल राइट हेयर अबव डिस्पोजल ऑफ रबिश. यहाँ तक आपने सारा का सारा पार्ट करना है क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है. सो इसको आप अपना थोड़े से अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इंक्लूड ये सारा पार्ट होगा. सो दीज वर योर exercise questions. I hope you understood well and I'll see you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.